नमस्ते। नमस्ते सर। तौफीक जी के बारे में कुछ बोलकर उनको स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। Alongside being a close family member, Tawfiq ji, as we all know, is a renowned percussionist and composer. Coming from legacy himself, Tawfiq ji has carved his own unique path in the world of percussion. Known for his mastery of the djembe and his creative approach to rhythm, he seamlessly blends Indian classical music with contemporary styles. Rakesh Chaurasia is one of India's finest and most celebrated flautists. While Rakesh ji has inherited such a rich musical legacy, he has also established his own distinct identity in the world of Indian classical music. He effortlessly bridges the gap between traditional Indian rag and contemporary music, captivating audiences worldwide with his versatility and emotional performances. Purvain Chatterjee, the sitar maestro, is one of the most dynamic musicians of his generation. He has deep roots in Indian classical music and also boldly explores fusion music. And this is how he seamlessly weaves tradition with innovation. While he carries forward the legacy of the legends, he creates a sound that's entirely his own. All three of these maestros are gurus themselves. Alongside their performances and travels, they also spend time and energy to train the next generation. The mood they create, the melodies they weave, and the emotions they bring out so effortlessly, it's a lot of hard work. It takes years of dedication to play these complex structures, intricate rhythm patterns, and the use of improvisation to mesmerize the audiences again and again. They are true legends of their craft, and it's an absolute honor to have them on the same stage. We welcome Tawfiq ji, Rakesh ji, and Purvain ji. Please let's have a big round of applause. तौफीक जी, राकेश जी और पुरपायन जी, आप तीनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी आज आजीवासन आकर हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को संबोधित करने के लिए। हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा गाए। इंस्ट्रूमेंट्स का ध्यान अक्सर तब आता है जब पेरेंट खुद इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो या फिर जब सिंगिंग टीचर कहे कोई इंस्ट्रूमेंट भी सीख लो। अमूमन ऐसा ही होता है। इंस्ट्रूमेंट सीखने के चुनाव से लेकर उनका रियाज और एक सफल म्यूजिशियन बनने का जो सफर है, इन बातों से संबंधित है हमारे आज के सवाल। मैं हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और आपसे उनकी तरफ से सवाल पूछ रही हूँ। तौफीक जी, earlier parents enrolled their child into a tabla class. Eventually, after a few years, the child could decide whether they want to play drums or any other percussion. Today, very young children walk in stating very clearly that they want to learn to play the drums or the djembe. So should tabla be the first step? For me, the first step right now is to thank Ajivasan and to you for this Ajivasan Act 24, and I'm really honored to be part of this get together. And it's amazing that we have so many people who have come here to take in the whole atmosphere of this is not a concert, it's a talk, but to see so many people for talk and that also concerning music, it's amazing to see such an audience really, and it's thanks to you guys. Thank you. Thank you so much. So the tabla is actually one of the most versatile percussion instrument ever made, and no rhythm instrument has actually, for me at least I feel, has reached there. Each instrument, if you're talking about drums, you're talking about mridangam, pakhawaj, they all have their own identity, their own beauty, their own stature. But this is one of the most versatile percussion instrument ever made. So for me, my initial training has been that. Because being born in the family with Ustad Allah Rakha and Zakir Bhai there, it was क्या कहते हैं ना कि वो होना ही था कि मैं उसकी तरफ जाऊंगा. But I would always say if you're in India, whether you're doing drums or you're doing djembe or you're doing any other percussion instrument, you must take a little bit of knowledge of some percussion instrument which is Indian. Because there your foundations become very strong. Your foundations become strong
and then you can jump anywhere from there. I mean, I've seen it. I have learned from my father, and that knowledge, kind of gave me a very strong root. And because you're learning such complex things when you're doing, the Indian classical rhythmic patterns, kaidas, velas, and the gindkari, which means the calculative stuff which is there, and such amazing traditional compositions which have come down from 400 years. Right. They come down to you to play such traditional compositions. They really make you very strong, deep rooted, and then you can collaborate anywhere. So yes, little bit of, if you're, either South Indian or North Indian, थोड़ा सा अगर आप उसकी तालीम लेंगे तो आपको उससे मदद होगी. जी. सब तीनों से आप तीनों से एक सवाल है. इंस्ट्रूमेंट सीखने का जो चुनाव होता है, इज इट एन इम्पल्स? हमारे बच्चे ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए या खुद को कौन सा वाद्य उठाना चाहिए, ये निर्णय कैसे लिया जाता है? व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स दैट हेल्प आइडेंटिफाई और डिटरमाइन कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट उठाना है? आप बताएंगे राकेश जी? पता नहीं, हमारे स्कूल में तो ऐसा होता था कि जो बच्चा बेंच बजा रहा है ये तबला अच्छा बजाएगा, अक्सर ये होता है. सबने बजाया. पर ऑन अ सीरियस नोट, बहुत लोग, जैसे आपने बात किया जो आज टॉपिक है वोकल को लेके, बहुत से मेरा मैसेज ये पेरेंट्स को है कि दे वांट देयर किड्स टू बिकम अ सिंगर. फॉर वन रीजन, टीवी पे जल्दी आ जाएंगे. यही होता है कि कोई ना कोई रियलिटी शो में आएंगे, बच्चा फेमस हो जाएगा. पर आज भी हम लोग जब गुरुकुल सिखाने जाते हैं तो पूछते हैं कि मेरे बच्चे को क्या सिखाना चाहिए. तो हमने बोला कि एक यूट्यूब पे सारे इंस्ट्रूमेंट, गाना, जितना भी उसको दिखाइए, और आपकी नज़र उसकी एक्सप्रेशन पे होना चाहिए कि उसको क्या अच्छा लग रहा है. अगर उसको वो चीज़ अच्छी लग रही है, ही कैन डू इन हाफ टाइम. आज के बच्चे को अगर आप एक आईफोन दीजिए हाथ में, 15 मिनट में उसका पूरा हिस्ट्री, हम लोग आज तक ढूंढते रहते सेटिंग में क्या है. अपने बच्चे से पूछना पड़ता है, हाँ पापा वो सेटिंग में जाओ, वो दबाओ, हो जाएगा. तो क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट है. हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत मुश्किल है. सो बच्चे के लिए पहचानने के लिए उसको क्या अट्रैक्ट कर रहा है, वो किस चीज को देख के आंखें झमकाने रहे, एकदम सीरियसली देख रहा है, मतलब वो उसको साउंड, म्यूजिक तो बात की बात है, वो साउंड उसको अच्छा लग रहा है. जैसे मेरे हाल में ये हुआ, जब मैं घर में था, छोटा डिंकी कास्ट खेल रहा, तो बाबूजी जब भी घर में रहते थे, हार्डली यूज्ड टू स्टे एट होम, पूरा दिन प्रैक्टिस करते थे. वो साउंड मुझे अच्छा लगा. ये नहीं सोचा था कि फ्लूट बजाना है, पर वो साउंड अच्छा लगा. जब जिस दिन पूछा गया है कि किसी को म्यूजिक सीखना है, मुझे वो सीखना जो आप बजाते हो, बिकॉज वो साउंड मुझे अट्रैक्ट किया. म्यूजिक तो अभी राग सीख लिए, यमन तो आप उसको सितार में बजाइए, फ्लूट में बजाइए गाना, पर अगर मुझे नहीं, अगर मेरी आवाज ही अच्छी नहीं, बहुत लोग पूछते हैं आप लोग को फ्लूट बजाने के लिए गाना भी पड़ता है. बोले गाने में प्रॉब्लम नहीं है, सुनेगा कौन. तो पहली बात तो म्यूजिक में आना भी एक ऊपर का आशीर्वाद होता है. उसके बाद अपने माँ बाप, अपने गुरु का आशीर्वाद, सब कुछ. उसके बाद हमारा गिफ्ट, हमें वॉइस अच्छी मिली कि नहीं, वो जरूरी है. तो किस क्षेत्र में जाना है, वो एक परिवार का भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. मगर नहीं तो बनना, मुझे डॉक्टर है और इंजीनियर खामखा बना रहे हैं, सबको डॉक्टर बनना है, तो पेशेंट कौन बचेगा. तो वो अगर म्यूजिक ऊपर से अगर ब्लेसिंग्स है, तो ये हमारा ड्यूटी है कि इसको किस चीज में डालना चाहिए. बाकी फिर एज एन एकेडमी हम भी इसका बहुत, हमारा भी अनुभव है कि इंस्ट्रूमेंट की तरफ बाद में चलते हैं बहुत कम. अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो द परसेंटेज ऑफ पीपल दैट वॉक इन से कि हमें ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट सीखना ही है, वो नंबर कम है. और इसलिए मैं आप एक दो रियलिटी शो बढ़ा दीजिए इंस्ट्रूमेंट्स का, देखिए अपने आप तो मैम जी, आपका मुझे हाउ टू सिलेक्ट, especially coming from the field of sitar, थोड़ा डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है. उसको देख के पहले पेरेंट्स को भी लगेगा कि हमारा बच्चा कर पाएगा कि नहीं. नॉट दैट एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इज इजी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हाथ पे लगता है एंड ऑल ऑफ दैट. सो बिगर इंस्ट्रूमेंट आल्सो. पर इसमें मुझे एक स्टोरी सॉरी बहुत पहले जब मैं बाबूजी के साथ कानपुर गया था, जर्मनी में भी कॉन्सर्ट था, तो प्रेसिडेंट को बुलाया, आप आके फेलिसिटेट करें. वो उनको छोड़ के पहले मुझे पकड़ा.
लेकिन मेरा इंस्ट्रूमेंट बड़ा था आगे वाला जाना। तो जो बड़ा होगा वो मेरे इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए तो ड्रमर बीच में बैठे। But size सबसे बड़ा size doesn't matter ना। वही मतलब percussionist setup. So I was yesterday in this beautiful space in Bangalore called the Indian Music Experience, which is I would say a must see for every Indian musician but also every Indian citizen. वहाँ जाके मुझे ये एहसास हुआ कि these instruments, the sitar, the flute, the sarod, santoor, these are not just musical instruments, these are a part of the identity, the history of this country. Because if you look at the sitar, for instance, the sitar is a collision of musical cultures, of religions. If the Persian setar and the Indian veena hadn't come together through Amir Khusro Sahab, this instrument wouldn't have been there. And that's part of who we are as a country, as a civilization. तो मैं हमेशा ऐसा बताता हूँ, अभी भी मैंने बताया कि अब जैसे कोल्ड प्ले इज कमिंग, मैंने सुना कि टिकट्स का ऐसा हालत है कि बुक माई शो इज क्रैश्ड, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एज इंडियंस और एज इंडियन सिटीजन्स वी आर नाउ very proudly a global country. We are out there in the world, along with the best, along with the superpowers of the world. If we are not comfortable being who we are, and if we are not comfortable under our own skin, I think that is the most attractive version of itself. Now, rahi baat instrumental music, it's not instrumental music versus vocal music. Let's get that fact sorted, because I think we will all agree that we are here to serve the melody. Melody is king. You always know melody is king, and I'm sure whether it is a singer singing the melody or an instrument playing the melody sits on the top. Then we have everything serving the melody, including the harmony. So those of us who have an interest in Western harmony, we are also serving the melody. Sometimes the melody is serving the harmony also. तो मेरा कहना ये है कि इंडिया में, and that is where I would like to commend Ajivasan, institutions like Ajivasan, and because I know the family and because I know Acharya Jayalal ji was a sitar maestro, तो ये तो मेरे लिए खास लगाव है इसके लिए। तो अब बात क्या है कि I feel what is required in this country and this part of the world is better musical education. बचपन से अगर लोगों को सिखाया जाए कि इंस्ट्रूमेंट्स का ये रोल है, ये इंस्ट्रूमेंट ये हालत में आता है, जैसे तौफिक भाई इतने सारे, of course his main instrument is the djembe, but he can create so many sounds and all of those sounds serve some purpose. जैसे राकेश भाई from devotional to बुद्धा बार सब जगह इनका फ्लूट सुनाई देता है, तो अलग अलग जगह इट सर्व्स अलग पर्पस, एंड दैट पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में एक दिन होना चाहिए, एक दिन, one day in 365 days when all instruments should be switched off. तो आप कोल्ड प्ले को सुनिए बिना इंस्ट्रूमेंट्स, जस्ट लिसन टू द वोकलिस्ट, आप सुनेंगे नहीं, आप नहीं सुनेंगे। एंड खासकर मॉडर्न म्यूजिक, इफ यू आर गोइंग टू गो टू a pop concert by any artist, Indian, Western, wherever, hip hop, switch off the instruments, switch off the guy who's working on Ableton, switch off the guitar player's sounds. आप सुनेंगे 3-4 minutes सुनेंगे। If the vocalist is that amazing, if the vocalist has that kind of perfect pitch, तो 3-4 minutes सुनेंगे, दूसरा गाना नहीं सुनेंगे। So that is where we have to understand that we are serving the melody, all of us are serving the melody, and we have to be conscious about who we are as a people. This is part of our history. तो मैं जब गया था बैंगलोर में, इसलिए मेरा एहसास हुआ, I said that it's a beautiful space. I really ask all of you, all of any Indian citizen should go. You'll feel proud. There is Zakir Bhai's tabla is kept there, Ravi Shankar ji's sitar is there,
Pandit Bhimsen Joshi's kurta, shawl, and not only that, it's an overview of तो ये बहुत जरूरी है musical education. That's what I meant. गाना सीखने वाले बच्चों से हम कहते हैं कि कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट सीखना जरूरी है। उसी तरह आप से क्या कहा जाता था कि आपने गाना सीखना चाहिए और आपने सीखा है गाना? मैंने तो नहीं सीखा, नहीं सीखा। but by default, by performing या playing, inside we are singing. Otherwise, एक तो हमारा जो शास्त्रीय संगीत है और इंडियन म्यूजिक है, इतना नोटिफिकेशन नहीं है कि नोटिफिकेशन देख के 2 घंटा गुजार गया। तो कभी कभी परफॉर्मेंस में वेस्ट में यही सोचते हैं कि बहुत बार तो why the Indian classical artists they close their eyes, they're sleeping while performing. बोला sleeping नहीं है, हम लोग आँख बंद करके सोच रहे हैं because वो ऑनलाइन चल रहा है। Next क्या है? We don't have an audition, so इसलिए लाइव कॉन्सर्ट इज लाइव कॉन्सर्ट। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है बिकॉज स्टूडियोज में फिर भी करेक्शन हो सकते हैं, रीडअप हो सकता है। स्टेज में एक बार कमाल से निकल गई, वो अगर गलत है तो गलत जाके लगी। तो वही रीजन की वजह से प्रैक्टिस करना पड़ता है। और जहाँ तक गाने की बात है, गाना सबके बस की बात नहीं। वो उसके लिए भी भगवान ने कुछ लोग को बनाया है। देखने में भी अच्छे होना चाहिए, आंखें भी अच्छी होना चाहिए, तब लोग फोटो पे आते हैं और फिर गले तक जाते हैं, इसको सुनते हैं। और नहीं जरूरी है, नहीं तो ऑडियंस भी आंख बंद करके सुनेगी। मैं जब वो कस्टम मेक ऊपर वाला ही डिसाइड करता है किसको क्या बनाना है, और उसी को लेके फॉरवर्ड अगर जाएंगे तो बेटर। पर हम अंदर गाते हैं, बाहर नहीं। वैसा रियाज किया नहीं है जी, जाने वाले इन्होंने किया किस चीज का? सिंगिंग का नहीं किया। नहीं किया। अच्छा, और करना चाहिए था। मैंने बचपन में सीखा है जी। और करना चाहिए था, मतलब किया है। जी। तो एक्चुअली मैं जब तकरीबन 6 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे पंडित निखिल बैनर्जी के पास लेके गए थे, ऐसे ही सुनाने के लिए। मैं तो थोड़ा बहुत ही बजाता था, एक आध सॉन्ग सीख लिया था, और बंगाली वो तो पहले टैगोर सॉन्ग्स कुछ ना कुछ ऐसा तो मैंने बजाया उनके सामने। और एक यमन की गत भी सिखाया गया था मेरे को, मैंने बजाया। तो यू नो ही हैड पुअर आई साइट, तो उन्होंने चश्मा निकाल के ऐसा एकदम नजदीक आके वाज चेकिंग आउट माय हैंड्स टुगेदर। बोला हाथ का पोजीशन वगैरह तो सब ठीक है। फिर पिताजी को बोले तुम जाओ रूम से बाहर जाओ। अच्छा। हाँ, मुझे इससे अकेले में बात करना। तो मुझे पूछा, अच्छा तुमने मोहम्मद रफी के गाने सुने? हाँ। तो मैं तो आई डिडंट नो सच अ ग्रेट पर्सन व्हाट आंसर टू गिव, एंड आई वाज फॉर्चुनेटली अ फैन। तो बोला कि कौन सा गाना? तो मैंने बोला एहसान तेरा, बचपन में सुनते थे। बोला वो बजा के सुना। तो उनको बताना, उनका बताने का मतलब ये था, एंड ही टोल्ड डैड आल्सो लेटर ऑन कि फिल्मी गाने बजवाओ, बिकॉज अनलेस ये जो the full package with all the murgis, all the harkats, little bit of taan, being in rhythm, ये पूरा पैकेज चाहिए तब जाके इंस्ट्रूमेंट बजेगा। और गाना जब तक अंदर से ठीक से गाने का हर एक फैसेट जब तक ना आपको समझ में आए, तब तक यू कांट रेप्लिकेट इट ऑन एनी इंस्ट्रूमेंट। तो बाद में आई हैड गॉन एंड लर्नड फ्रॉम पंडित अजय चक्रवर्ती फॉर सम इयर्स, एंड जब भी मुझे शौक है पर रियाज नहीं किया। आपने जितना जिम किया उतना रियाज नहीं किया। ऐसा कौन सा गाना बताया आपने? ऐसा शंकर वाला ऐसा? रफीक जी, गाना गा दीजिए। वो वही गाना सुने। Let them decide, not yes. अब वही होगा कि इंस्ट्रूमेंट के बिना ही गाऊंगा। हाँ, जो भी आपने कहा था वही होगा। अब 2 ही 3 मिनट सुनने का एक्सपेक्टेशन है तो चल जाएगा। हम लोग इंस्ट्रूमेंट आए नहीं है, आप ही अट्रैक्शन है। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है,
कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। अमेजिंग, क्या बात है। थैंक यू तौफीक जी, दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज सो नाइस, सो स्पोर्टिंग। रियाज है कि नहीं? हमने जो प्लान है? किया था अच्छा गया। मगर एक गले से ज्यादा उंगली से गा रहे थे, हाथ ऊपर आ रहा था बार बार। होता ही है। एल जैरो को आपने कभी देखा है? व्हेन ही सोलोज ऑन समथिंग, हाँ। उनका ऐसा चलता है, क्लैरिनेट पे हाथ चलता है। अच्छा। तो वो बचपन की आदत है। मतलब मींड अगर कोई आ रहा है, जैसे जो ही बात मैंने कहा कि मुड़की, हरकत, खटका, जमजमा, अब ये सब क्या है? दीज आर टर्म्स, दीज साउंड वेरी डिफिकल्ट जब बोलते हैं कि मुड़की। हाँ, तो बट आप सब लोग गाते हैं जो बचपन से बड़े हुए, इधर पले बड़े हैं, सुने हैं मोहम्मद रफी साहब के गाने सुने हैं, किशोर दा के गाने सुने हैं, उसमें सब है मुड़की, हरकत। ऑफ कोर्स, ट्रू। और ये बहुत बड़ा एक हेल्पफुल चीज है हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री, जी, जो थोड़ा भी वहां काम करेगा ना, उसका गाना बजाना अलग ही होगा। प्रिसाइज जो होता है ना, क्या बात है, क्या बात है, कि नमक नमक जितना ही होना चाहिए। क्या बात है, ब्यूटीफुल। हमारे कभी कभी, सॉरी बोलना नहीं चाहिए, पर क्लासिकल वाले मतलब एक निवाले में पूरा अचार भी खा लेते हैं। वो अचार उतना ही होना चाहिए। सही बोल रहे आप। ये फिल्म इंडस्ट्री लाइन ये सिखाती है कि कितना क्या और कब प्रमाण, करना है। हाँ जी, हाँ जी, प्रमाण। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल। और आप लोग वोकल सिखाते हैं, आप लोग को भी एक मैं बोलना चाहूंगा कि वोकल, आप सुरेश जी ने बहुत काम किया, जितने आपके शागिर्द हैं, दे साउंड डिफरेंटली वेदर सिंगिंग क्लासिकल और सेमी क्लासिकल। बाकी कोई वोकल पे काम नहीं करता, साउंड थ्रो पे। जी जी, नाइस। क्योंकि जो पहली चीज आदमी को प्लीज करती है वो आपका वाणी है। उसके बाद आप क्या गा रहे हो, कितना तैयारी है, क्या, वो सब बात की बात है। सही बात। कुछ ऐसे होता है ना, हेलो हाउ आर यू, अरे बिजी है, बाद में अच्छा कोई बात करेगा तो हाँ थोड़ा और देर बात करो, अच्छा लग रहा है। So और जैसे मैं अभी तौफीक भाई को बोल रहा था, दैट इज टोन, कि जो एमसीज होते हैं, अभी भी इधर के भी जो भाई साहब थे, जी, एक अलग हाँ, बेस, हाँ, एक आ ही जाता है, नमस्कार, ऐसा मतलब अजहर भाई हम लोग नहीं कर पाते। तौफीक जी, गायन का सवाल था तो क्विकली आई जस्ट वांट टू नो। नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि सही गाना सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वो काम आता है जी। और आजकल तो ये थोड़ा बात कभी कभी ऐसा भी लगता है कि गाना वाला होता तो अच्छा होता, क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं होता। क्योंकि बाजू में कितना भी बड़ा आर्टिस्ट बैठा हो, सबका ध्यान गाने वाले की तरफ ही जाता है। नहीं, पर तौफीक जी, आपके कॉन्सर्ट से तो हमने देखा है, लोग उठ के यहाँ आजीवासन में हुआ था, और आपने ऐसा कमाल किया था स्टेज पे, तो अभी हाँ अभी जो इनसे इंस्पायर हो गए। तो नहीं, मैं ये फील करता हूँ कि गाना आना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप कुछ कंपोज कर रहे हैं या कुछ है, या गाइए, या कुछ हारमोनियम या कीबोर्ड, कुछ तो मेलोडी रिदम वालों को भी समझना चाहिए। बिकॉज जब आप, क्योंकि एक काम है, देखिए रिदम का काम होता है अकम्पनीमेंट, तो जब आप अकम्पनी करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा राग चल रहा है, उस राग का क्या भाव है, क्या उसका है, उसको कैसे अकम्पनी करना चाहिए। और कभी कभी कोई गाना है, गजल है या भजन है या गीत है, उसके पीछे किस टाइप का ठेका होना चाहिए, तो वो जानने के लिए आपको थोड़ा गाना अगर आएगा तो आप ये सब चीजें समझ सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वी हैव एक्सपीरियंस दैट। हमारे यहाँ एक तबला बजाते, मतलब हमारे क्लासेस में हम साथ, गुरु भाई है मेरा, विनायक नेट के, पर मैं देखती थी वो जब भी संगत, क्योंकि वो गाना सीखा हुआ है, तो बहुत उसके संगत में अलग जादू हुआ करता था, बिकॉज ही यूज्ड टू प्ले द सॉन्ग। और उसकी वजह से मैं क्लासेस में हमेशा बोलती हूँ कि आप तबला जो बजाते हैं वो गाने को बजाते हैं, और आप ताल को गाइए, मतलब ताल को संभाल के। सो इट्स ब्यूटीफुल इफ द तबला वादक हैज लर्नड सिंगिंग। उनकी उम्र क्या है? हाँ जी, उनकी उम्र क्या है विनायक की? वो अभी होंगे 40, अब बड़े। पर अभी जो 20s में चल रहे हैं, वो जो थोड़ा भी गाते हैं ना, सब माइक पे आ गए। अच्छा, समझ गई। सभी सिंगर बनते हैं। आई गॉट यू, ये बात तो सही है, बहुत सही बात। और अगर वो लाइक्स पे चल रहे हैं, अगर लाइक हो गया तो पर चल पड़े।
चल पड़े यार, थैंक्स टू सोशल मीडिया। पर अगर गाना है तो सीखना जरूरी है। सीखना जरूरी है। बट एक मैं हाँ जी, गुलाम अली जी जो हाँ जी, गुलाम अली जी गुलाम अली साहब, हाँ जी, उनको फिर बाद में मालूम पड़ा तबला प्लेयर को ज्यादा मिलता नहीं है। सुरेश भाई भी बहुत अच्छा बजाते हैं। जाकिर भाई के साथ बजाया आपने? वो साल में एक ही बार बजाते, बाकी बोले मेन अट्रैक्शन ठीक है। आज मूड में है राकेश जी, तो बहुत मूड में। अरे आज ये कब मूड में हमेशा नहीं मूड में रहते होते हैं, हैं। ऐसा बोल दिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट संगत एंड सोलो। तो उसके क्या तहजीब होते हैं, क्या सोच विचार होता है व्हाइल प्लेइंग सोलो वर्सेस जब आप संगत करते हैं? तो जस्ट मुझे तो यही बोलना है कि what we are talking about just now, जी that सबको गाना सीखना चाहिए. As I said, we are all here to serve the melody. Sometimes जब आप म्यूजिक का कॉन्टेक्स्ट को समझ जाते हो, जी the whole thing about being a good artist is not only to learn what to do, but what not to do, where to back off. ट्रू ट्रू तो आप जब आपको समझ में आ जाता है कि आई एम हियर टू सर्व दिस पर्पस, जैसे कि राग हो, चाहे गजल हो, चाहे ठुमरी हो, जो भी हो, उसका जो भी मिजाज है, उसका जो भी मूड है, उसके हिसाब से खाली भरी संगत में. ऑफ कोर्स तौफिक भाई विल बी एबल टू टॉक अबाउट दिस मच मोर, बट एज एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज अ मेलोडी प्लेयर, आई नो व्हाट आई अप्रिशिएट. अगर मैं कंफर्टेबल रहूंगा विद द संगत दैट आई एम बीइंग प्रोवाइडेड, देन आई विल बी एबल टू मेक द ऑडियंस कंफर्टेबल, क्योंकि आई हैव अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट दिस मेलोडी needs and what, whether it's a gut, instrumental gut, or I mean अगर गजल की बात करें तो वो तो अलग ही दुनिया है. तो अब उधर क्या खाली भरी हो सकती है गजल में चाहिए. when you are coming back to the second part of the, you will need the tabla player to take off. अगर वो उधर नहीं टेक ऑफ करेगा तो आप एनर्जी you'll feel the energy missing or dropping. तो ये सारी बातें जो है, इसके लिए आपको सीखना है. You have to know the songs, you have to know the bandishes, which is why some of the greatest tabla players or percussionists who are considered as the great accompanists and those who are highly in demand are so, because उनको पहले से मालूम है कि ये बंदिश कैसे जाती है, इसका चलन कैसा है, इसका जो सेकंड पार्ट है अंतरा कैसे जाता है. तो ये सारी चीजें. राइट. According to me, is very right. But मैंने बहुत लोगों के साथ संगत की है, किसी को नहीं छोड़ा. मेरे लिए it was a learning process, starting from गुलाम अली जी, पंकज भाई, हरिहरन जी, तलत भाई, अनूप जी, सब के साथ, आशा जी ऑन स्टेज. आपको डिसाइड करना है कि गाने को खूबसूरत बनाना है या सिर्फ ताली लेना है. मुझे याद है एक बार हम लोग कहीं प्रोग्राम बजा रहे थे और सामने दिलीप कुमार साहब बैठे थे. तो मैं जितने वॉल्यूम में अगर म्यूजिक बजा रहा हूँ, वही वॉल्यूम में अंतरे का फिलअप नहीं बजाना चाहिए. बिकॉज अंतरा एक लाइन चल रही है, एक स्टोरी लाइन चल रही है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. क्या बात है. अगर मुझे एक म्यूजिक में कहीं ताली मिल गया, अब मैं पूरे कॉन्सर्ट में माइक में घुस के ही बजा रहा हूँ, तो गाने का मूड क्या है. तो यूसुफ साहब ने किसी जोर से फिलअप किसने बजाया, उसको चुप करवाया था, because he was concentrating on the lyrics. वो ब्रेक ना हो. तो ये हम कलाकार का भी है. आप अगर संगत कर रहे हैं तो आप एक संगतकार हैं. You should be adding more elements to the song, to the artist. ये नहीं कि भाई मैं अलग लगना चाहिए कि मैं जात बाहर हूँ, मैं तो स्टेज से मैं एकदम अलग हूँ, अलग कलाकार हूँ, मैं जब बजाऊंगा तो सब चुप हो जाओ. नहीं. We are adding on. उस गाने में लेयर बन रहा है, कॉर्ड्स हार्मनी का एक सिस्टम होता है. वैसे एक सोलोस का है कि गाने का कितना मूड है. अब जब तक मुझे ताली नहीं मिल रही तब तक मैं बजाते रहूं. लोग बोर होकर ताली बजा रहे, भाई बनकर गाना भी गाना है. ये भी समझना चाहिए. When you are accompanying is a different ball game. जब आप मेन हो तो वो अलग होता है. वो दिमाग में स्विच रखना पड़ेगा.
राइट राइट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये बजा बजा के सीखना होता है, इसको आप दिमाग में रख नहीं सकते हो। जी। एक कॉन्सर्ट गड़बड़ हुआ यार, आई करते वाज टू लाउड, नेक्स्ट टाइम मुझे समझना चाहिए राइट वेयर शुड आई डू स्टैंड। राइट राइट, ब्यूटीफुल, परफेक्ट। Yeah. So yes, that's very very true. मैं अपना ही एक एग्जांपल बोलता हूँ। देखिए सत्संगत क्या होती है ये भी कोई बताने वाला होता है, एक गुरु गुरु का काम। तो बहुत साल पहले मैं 22-23 साल का था, सरोद वाले के साथ बजाना था। तो मैंने अब्बा जी से कहा था भारतीय विद्या भवन में कॉन्सर्ट है, आप आएंगे? बोले हाँ मैं आता हूँ। तो प्रोग्राम होने के बाद हम घर गए, तो मैंने अब्बा जी से खाना खाते हुए पूछा, अब्बा जी कैसा लगा? बोले तू साथ संगत कर रहा था कि सोलो बजा रहा था? ये बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझे कहा, मैं जब बोले तुमको जब बजाने मिलता है तो कायदे के सारे 10 के 12 पलटे बजाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बजाओ और तिहाई देके खत्म करो। तुम ऐसे बजा रहे थे जैसे तुम्हारा सोलो है। तो ये मेरी बात में दिमाग में बात घुसी, क्योंकि इतनी बार अब्बा जी जाकिर भाई को देखा है, लेकिन वो जब बजाने का वक्त आता है, अरे मैं बजाऊंगा, मैं इतना बजाऊंगा, तो मुझे तालियां भी मिल रही हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो ये बात बहुत जरूरी है समझना कि साथ संगत के दौरान, जो जाकिर भाई ने एक बात बहुत अच्छा कहा था कि साथ संगत करने वाले का काम क्या है, कि जो मेन आर्टिस्ट है वो हमारा पैसेंजर है, हम ड्राइवर है। हमें गाड़ी ऐसे ले जानी है, स्पीड ब्रेकर, खड्डा इसके ऊपर, कि हमारा जो पैसेंजर है उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी विदाउट एनी प्रॉब्लम लेके जाना है। दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ एन अकम्पनिस्ट। राइट, ये बहुत जरूरी है हमें। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये क्योंकि आपने बोला ताली अच्छी लगती है इसलिए बजाया। नहीं, मेरे साथ भी ऐसे होता, मैं तानपुरा बजा रहा था बाबूजी के साथ, बहुत छोटा सा था, मगर ध्यान उनके फिंगर्स पे था। तो जैसे ले दुरुत ले बड़ी तानपुरा उस स्पीड में चल रहा है, तो 2 बार घूम के थोड़ा स्लो, फिर वो नेक्स्ट डे से फ्लूट बजाओगे स्टेज पे, मतलब ये नहीं बोले कि तानपुरा मत बजाओ। तो प्रमोशन हो गया उसकी वजह से। नाइस, प्रमोशन हो गया, नाइस, ब्यूटीफुल। किसके पीछे? ये जरूरी है। That is the point. ये कह रहे हैं माइक में बोलो ना। इन्होंने बहुत लोगों के पीछे बजाया तानपुरा, मैं बोला स्पेसिफाई करो भाई। Why is the band culture not so strong in India? Why does everyone travel outside and मतलब bands may participate to make a band? Why is it not so popular in India? Band culture. I think it again comes down to the same problem. I think we have a big industry. We have a big music industry. We have a very well-oiled machinery. But unfortunately, I don't think we have a very well-organized machinery. Right. I don't think anybody in this country has the opportunity of studying the music business. I don't think there is a course, there's a formal course which teaches anybody how to promote a band. तो आप बैंड को कैसे प्रमोट करोगे if you don't know, because it's a professional job. You'll have to know how to create the identity of a band. It always becomes about the person, one person or 2 people or 3 people who are the face. Right. But if you see in the West, we were just talking about Coldplay. Everybody knows Coldplay as much as they know Chris Martin. Everybody knows, like Snarky Puppy. Everybody knows the name Snarky Puppy. Many people don't know the name of Michael League. Now they do. But so the thing is, एक तो वो बात है, दूसरी बात है, मुझे लगता नहीं है कि इतना commitment possible है. You know, with the Bollywood scene, it is possible because that's a better oiled machinery. अब it's a demand supply thing. So demand इतना है कि the whole management system and the band members उनके लिए नौकरी जैसी है, so they can commit themselves to say 5 or 6 shows a month. Right. लेकिन when it comes to instrumental bands or independent, you know, now independent music is taking off in this country, I think, on a much better. Right. So maybe in 10 years, but I think the music business needs to be studied formally, where we have a more efficient and a more well-informed system of not only management but production at every step. Right. So then we can
really promote bands for Band. what they stand for. Also genre, people have very little idea about genres. Right. Ab we have only two things in this country. One Huh. is Bollywood, other is non-Bollywood. Huh. And the third is classical. बहुत classical है. मतलब Classical, that's the correct. That's how and it's so you know, in the West you have hip hop, you have soul, you have R&B. Everything has its own flavor. So if you make a band, Right. you can tell the story कि भाई मेरा band ये sound है. right. इधर वो बोलने लायक sound नहीं है. And this whole thing called independent music is also a, you know, I'm sorry to say, but a bunch of people writing their own stories, which is great, writing lyrics, you know, from the heart. But there's very little focus on good arrangements, intelligent songwriting. Right. क्योंकि ये सब सीखने वाली चीज है. Yeah. In the West there is the system of conservatory. Right. I would say in classical music there's a better system because इधर गुरुकुल system हमारा है, गुरु शिष्य परंपरा है, तो classical music लोग सीख के ही करते हैं. Right. हाँ, तो जो लोग बॉलीवुड में या दूसरे इंडस्ट्रीज में क्लासिकल से आते हैं, से जाके हाँ, तो दे आर गुड बिकॉज दे नो व्हाट इज देयर साउंड. correct. बट बहुत there's a big percentage of people who just शौकिया, जैसे दादा बता रहे थे कि थोड़ा आवाज अच्छी है तो गाने लगते हैं. Hmm. तो अब होता क्या है, खुद का आइडेंटिटी क्या है, हाउ टू डिस्क्राइब योर म्यूजिक, यू डोंट नो व्हाट टू से. Right. इफ समबडी आस्क्स यू हु आर यू, कांट से इट. सही तो कैसे आप बैंड को प्रमोट करें? सही बात. Very true. नहीं, बैंड इंडिया में आई थिंक मुश्किल ही था, अभी भी मुश्किल है, बिकॉज वो थॉट प्रोसेस नहीं है. हमारा जो क्लासिकल सेमी क्लासिकल है, दैट इज ऑल मेलोडी बेस्ड, हाँ. एंड इट रियली डजंट रिक्वायर हार्मनी एंड कॉर्ड्स. Okay. अभी उनका म्यूजिक जो है, हाँ. इट कैनॉट सर्वाइव विदाउट हार्मनी एंड Without- कॉर्ड्स. तो उनको बैंड बनाना ही That's पड़ेगा. interesting. हाँ. आज हम आप एक तानपुरा लेके भी गा सकते हो, गा सकते हैं. तबला मिल गया तो भाई True. कॉम्पोजिशन भी गा दिया. True. Very true. Interesting. Yeah. सो इट्स वन नोट इंस्ट्रूमेंट है हमारा, Correct. म्यूजिक है जो. बाकी वहाँ की I'm going to interrupt. मुझे और एक चीज बताना है. जैसे दादा ने बताया क्लासिकल म्यूजिक में इट्स ऑल मेलोडी सेंट्रिक. हाँ. I would like to point out and very respectfully, हाँ. it is also generations of subservience. ऐसा नहीं, क्लासिकल म्यूजिक में भी जो गाने वाले बजाने वाले उनके साथ जैसे गाने वाले के साथ हारमोनियम, सारंगी, तबला तो ऑफ कोर्स Right. इनके बिना अधूरा रह जाता है. Right. लेकिन it was never promoted. In fact, there was so much of subservience हाँ. and accepted subservience. The harmonium player has accepted कि भाई मैं इतना, अब उनका रोल वही है. जी. रोल एक्सेप्ट करना एक चीज है, हाँ. लेकिन टू बी इट्स नेवर बीन प्रमोटेड एज अ As a बैंड. band. हालांकि आप देखेंगे हाँ. दिस इज अ बिट ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज आप देखेंगे जैसे पंडित भीमसेन जोशी के साथ फलाने तबला बजाने वाले थे, उनके साथ इनका अच्छा लगता था. हाँ. हाँ, या तो कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ जैसे तालमेल. पंडित रविशंकर जी के साथ अल्लाह रखा खान साहब. तो ये बैंड बना हुआ था, बट इट वाज नेवर प्रमोटेड एज अ बैंड. इन द वेस्ट इट वाज, बट इन इंडिया दैट्स व्हाई वी नीड एजुकेशन. कि लोगों को समझना चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं या गा रहे हैं, इनका रोल ये है, इनके साथ जो गा रहे हैं बजा रहे हैं इनका रोल ये है, और दोनों एक प्रेजेंटेशन को एनहांस कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई दे आर अ बैंड. वी आर अ बैंड विदाउट नोइंग वी आर अ बैंड. Right. So that's the scene. Right. Beautiful. Tawfiq ji, in a world of loops and samples, how does a percussionist stay relevant in the recording industry? In your opinion, can creating a loop or a sample library help repurpose your art, or by creating IPs maybe? Ye See, nowadays it's all cut paste. Let's say, if we talk about when I started working in the film industry, about 1986. So the electronic medium had just was picking up in a very big way. It had already started with 1978, 79, Right. with these drum machines and keyboards coming in, and Bappi Lahiri ji and Kalyan ji Anand ji and Biju Shah had started working with Kalyan ji Anand ji. He started getting a lot of electronic stuff. So by the time we came in the industry, the electronic market was really booming in India, although these were not very easily available. So I still remember Salim Suleiman's father, Merchant Bhai. He used to help us a lot because he had connections and he would bring it. But if there is a song, उसका मुखड़ा है, उसका क्रॉस लाइन है, म्यूजिक वन है, उसके पहले इंट्रो है,
फिर अंतरा आएगा, अंतरे में एक दूसरा पार्ट आएगा, फिर ऐसे म्यूजिक। सो जब हम प्रोग्रामिंग करते थे, मैं जब करता था रिदम की प्रोग्रामिंग, तो पूरा गाने का रिदम प्रोग्राम करना पड़ता था, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रो टू मुखड़ा साइन, ये सब हमें बनाना पड़ता था, बिकॉज हमारे वक्त में लूप्स इतने नहीं थे, नो VST, मैनुअली बनाना पड़ता था कि मुखड़े, अच्छा हमारे पास रिदम मशीन्स होते थे, सो पैटर्न 1 विल बी मुखड़ा, पैटर्न 2 विल बी क्रॉस, पैटर्न 3 विल बी पिक अप फ्रॉम क्रॉस टू साइन, ऐसे सब हमें we used to program it like that। तो इसलिए प्रोग्रामिंग में रिदम वाले को ही 2-2.5 घंटा लगता है, बिकॉज वो हेडफोन में, अच्छा अभी सब अरेंजर ने दे दिया है, अभी वो मेलोडी वाले अपना कर रहे हैं, रिदम वाला अपना कर रहे हैं, फिर हम साथ में सुनते थे, फिर कुछ चेंज करना है। तो आजकल क्या हो गया है कि इट इज लाइक VSTs इतने आ गए हैं, यू डोंट हैव टू मेक योर ओन लूप्स, सीधा उठाया लगा दिया। तो इसमें ये हो रहा है, प्लीज डोंट माइंड, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि हम लोगों को म्यूजिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी था, एंड विद दैट अभी मैंने कभी कॉलेज में इतनी किताबें नहीं पढ़ी है जितना ये रिदम मशीन ये सब लेके हो गए, इतने मोटे मोटे मैनुअल्स अभी पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, अरे यार ये क्या होता है, वो क्या होता है। मैंने बोला मैंने साइंस किया होता तो अच्छा होता, क्योंकि ये सब चीजें ज्यादा जल्दी समझ में आ जाती। तो वो सब हमें करना पड़ा, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, वी हैड टू डू, एक दूसरे को फोन करके, अरे तूने वो क्या किया वहां पे, कुछ ऐसा किया क्या, तो वो बोलता था अरे मैंने यहाँ ये बटन दबाया ना तो ऐसा हो गया। सो वी हैव टू डू ऑल दैट। अभी ऐसा है कि सब कुछ इज अवेलेबल ऑनलाइन, यू कैन जस्ट गो थ्रू VSTs। सो आई एम सेइंग दिस इलेक्ट्रॉनिका थिंग इज मेकिंग, is bringing out a horde of people who are not necessarily musicians। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल सब कुछ अवेलेबल हो गया। अभी ये गाने की बात कर रहे थे आप, तो आजकल तो पिच करेक्शन सब कुछ हो जाता है, मैं भी गाऊंगा तो मैं भी थोड़ा बेसुर हो गया तो पिच करेक्शन से हो जाएगा। एक वक्त था कि जब माइक के सामने जाके आपको यू हैव टू डिलीवर, यू हैव टू सिंग, और जो ऊपर नीचे है वो है वैसा ही है। अब तो सब कुछ हो गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिका, ये लूप्स, VSTs, दे आर मेकिंग योर वर्क इजी। यू नो, विशाल तो थोड़ी देर पहले जो कह रहा था, ही वाज राइट कि वी हैव टू, यू नो, द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये एक तरह का वही है, यू हैव टू बिकम फ्रेंड्स विद इट, बट यू कैन नॉट हैव दैट पर्टिकुलर थिंग रूल यू। यू हैव टू मेक इट कि भैया ये थोड़ा मैं करूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ। थोड़ा म्यूजिशियनशिप आनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। आजकल इतना इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, इतना कुछ हो गया है कि उसमें एक, क्या कहूँ मैं, एक तरह से एक रूदारीपन मिस हो जाता है बहुत, जो नहीं दिखाई देता या नहीं सुनाई देता, मुझे ऐसा लगता है। सॉरी अगर इसी को मैंने अगर वो किया हुआ था, मेरी सॉरी। ये तो मैं मानता हूँ कि अब लोग, अभी मैं कहूंगा सुरेश जी की पुराने गाने में जो आदमी को होल्ड करने की ताकत है वो नहीं है। नो वंडर 10 गुना एक्सपेंसिव गाना बनता है। पर अभी भी मैं अगर रेडियो सुन रहा हूँ, पुराने गाने सुनता हूँ, गराज में अगर पहले पहुंच गए तो हिम्मत नहीं या शक्ति नहीं कि उसको बीच में बंद करके निकलो, वो गाना पूरा खत्म करके ही गराज से बाहर निकल जाता था, क्योंकि पेन ड्राइव हो गया। स्टूडियो में जाना ही नहीं होता, आपके घर में भेज दिया, आपने भेज डब किया, वहां से वो गाना पेनड्राइव में घूम रहा है। तो जो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो एक साथ जो रिकॉर्ड होता था, एक दूसरे को सुन के बजा रहे गा रहे, एक साथ तो हो नहीं सकता। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आप लोग स्टूडियो में काम कर रहे हैं, मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं जब डबिंग के लिए जाता हूँ तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर को बोलता हूँ मुझे पूरा गाना बजाने दो, लेट मी प्ले द मुखड़ा, द क्रॉस, म्यूजिक के लिए अलग पैटर्न है तो मैं करता हूँ। तो मैं उससे ये कहता हूँ कि देखो मैं जितना हो सकता है सिंक में बजाऊंगा, क्योंकि क्लिक के साथ होना बहुत जरूरी है। आजकल ये हो गया है कि वो, अच्छा ये 2 बार बड़े अच्छे, इसी को लेके छाप देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी आगे के म्यूजिशियंस हैं, आप ना करें, आप पूरा गाना, अगर आप लाइव बजा रहे हैं तो पूरा गाना लाइव बजाएं। कोशिश करिए कि मैं पूरा गाना लाइव बजाऊं, और आप में अगर वो क्षमता है तो आप क्लिक के साथ बराबर ही बजाएं, उतने कॉन्फिडेंस से काम करिए। कितना भी अच्छा म्यूजिशियन है वो, आपका फर्स्ट अंतरा, फर्स्ट सेकंड म्यूजिक तक आपके वो गाना अंदर बैठने लगता है, तो वो और फील बढ़ता रहता है गाने का। सही बात है, वो बात का 2 बार उठा के लूप करिए ना। हाँ एग्जैक्टली, करना ही है तो बात का। बट आई फील इट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग टेस्ट्स। अब हम लोगों का जो टेस्ट है, हमारे जनरेशन का जो टेस्ट है, I think subsequent generations will have a different taste. It's a natural thing. So we can't always diss what is new.
Right. बिकॉज अब जैसे म्यूजिक द मेकिंग ऑफ, जैसे विशाल भाई बोल रहे थे, मेकिंग ऑफ म्यूजिक हैज बिकम अ डिफरेंट प्रोसेस because people have tools at their disposal. The same loop, they'll have the same loop, and then they'll modify the EQ of the loop, reverse it, जी and that's a different art form. ऐसा नहीं कि वो art form नहीं है. जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स है, मैं तो कभी कभी मतलब आई एम लाइक इन ऑ ऑफ देम कि वो there's a बंदा called Tennyson, he's a music producer. For every 60 seconds, which is 1 minute of a song, he spends 6 days. उसका EQ, हाँ, because he gets out, it's just about sounds. अच्छा एक साउंड को मान लीजिए एक लूप है, या तो एक कीबोर्ड का मतलब एक कोई हार्मोनी का कोई टोन, मे बी इट्स अ EP, तो उसका EQ, every bit of it he changes and sees what works with the song. So it's an art, it's a different art form. And also I had a very long discussion with Jordan Rudess, who's the lead keyboard player of Dream Theater. He has a lot of respect for Indian music. And unka jo point of view about AI, because when you were discussing, I felt it was a very potent topic, and maybe I can add something to it. He said AI is, we use the word artificial intelligence. It sounds very scary. It sounds like they're here to take the world over. But it's actually machine learning. You are teaching the machine to do certain tasks for you, which you don't have to give time for anymore. जैसे to give a kind of an analogy, जैसे हम लोग पहले बैठ के the arranger, we had a concept of an arranger who would sit and write harmonies. Okay, now abhi subsequently the music producer took that job over, learned about harmony and worked out, उसके बाद अभी क्या होगा, you can feed the AI a certain song, you write the lyrics, you compose it, AI will give you choices. So machine learning, the machine will learn from maybe 50,000 different songs in the same genre or other genres and offer you choices. You as an artist, your art is now to learn to make the right choice. तो वो भी एक आर्ट फॉर्म है. सो वी कांट ऑलवेज गो अराउंड सेइंग कि पहले तो ऐसा था, अभी तो ऐसा, क्योंकि फिर उसमें हम लोग भी आ जाते हैं. हम लोग बड़े हुए सुन के कि पहले के उस्ताद ऐसा करते थे. तो ये इससे जरा हम लोगों को भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि whenever you are dissing the present or the future, you are creating a disconnect, and you are, instead of pulling them in, you are pushing them further away, because they are thinking that, oh, this person doesn't appreciate what I do, but what I do is also art. So I would just like to make that point. Right. Very respectfully. Right. Good point. It's a good point. It's a very good point. राकेश जी, do you feel आपको ऐसे लगता है कि अभी फ्लूट एज अ सब्जेक्ट बहुत स्टूडेंट्स उठाते नहीं हैं जल्दी से इन इंडिया, एंड हाउ कैन पेरेंट्स रिकॉग्नाइज एक विंड इंस्ट्रूमेंट की जो पॉसिबिलिटी अपने बच्चे में है? How to, just by exposure, you think, or so what the question is, are people taking up? Question one part of the question is, do you feel that flute is, there are not so many takers for flute as an bansuri as an instrument in India, and how should parents thereafter try to recognize, therefore recognize कि बच्चे में ये भी capacity, because wind instrument का ये जो बोल रहे हैं जैसे टेबल पे तबला बजाना, थोड़ा बहुत it gives you a lead, especially for percussion, फिर भी मिल जाता है. Students come in for tabla. Sitar, not as many takers, I would say, versus percussion. But wind instrument की, it's only the kids who have a clear sight कि मैंने ये करना है. उसके अलावा, it's not an experiment. It's not. नहीं, बहुत बच्चे फ्लूट सीख रहे हैं. मैं पहले मुझे थोड़ा जेलस होता था जब भी abroad I used to travel. सबसे पहले नंबर पे तबला. हाँ जी. Lot of people, which is good. जी. अभी मुश्किल नहीं होती है कभी अपना तबला प्लेयर नहीं आया तो. दूसरी फिर वोकल जी, और फिर सितार, बिकॉज ऑफ पंडित रविशंकर जी एक सितार का ऐसा बन गया है कि अगर बजा भी नहीं रहे तो घर में एक शो पीस रखा हुआ है जी. वो दैट आल्सो इज गुड फॉर पॉजिटिविटी. पर इस लास्ट 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि फ्लूट की बहुत एक सिटी सैन फ्रांसिस्को में जहाँ की 1-2 सिर्फ बजाने वाले, वो भी बाबूजी के स्टूडेंट थे. वहां पे मैंने जब मास्टर क्लास किया तो कम से कम 22-25 लोग. मैं बोला ये कहाँ से आए? राइट. हैव दे फ्लोन फ्रॉम आउटसाइड? बोले नहीं, ये सब
यहाँ बे एरिया के हैं. Right. और So it was good to know that कि people are taking, या तो बहुत smart हो गए वो, you can take it anyway, no excess baggage. but कहीं कोने में बैठ के बजाओ, किसको डिस्टर्ब. जस्ट इमेजिन अगर कोई ट्रम्पेट प्रैक्टिस कर रहा है, बगल वाले का घर का फ्लैट का रीसेल वैल्यू के नीचे आ जाता कम है. आ जाता है. बट इंडिया में भी उतने टेकर्स दिख रहे हैं आपको? भारत हाँ, में? नहीं बिल्कुल है, बहुत है, बिल्कुल है. अभी आप और जैसे- बढ़ने वाला है, इनको और- ग्रैमी मिल गया तो अभी और बढ़ेंगे फ्लूट हाय, बजाना. हाय. मेरी तरफ से कोई नहीं है. पर नहीं, जैसे अगर आप घर में कैसे इंटरेस्ट है फॉर द फैमिली, जी. टू पेरेंट्स टू कम टू नो. अगर बच्चा घर में सीटी बजा रहा है तो ये मत सोचिए उसका कैरेक्टर खराब है, वो फ्लूट बजा सकता है. Nice. बट एक बात है कि फ्लूट हर लोग को बजाना चाहिए, भले भले प्रोफेशनल हो चाहे नहीं, बिकॉज फ्लूटिस्ट को कोविड हुआ नहीं. अच्छा. फॉर मुझे नहीं हुआ. somehow your Lung lungs power. get Your lung power. very strong. Right. आपने टेस्ट नहीं किया होगा. आज the stage is on fire. नहीं, पर बेड भी नहीं पकड़ा, बेड भी नहीं पकड़ा मैं, मतलब बीमार हुआ ही नहीं, नहीं आया बुखार. बाबूजी को नहीं हुआ. अब सोचिए अच्छी कि बात. गुरुकुल में अरे पहले everybody- बताते तो मैं भी सीख लेता कोविड के टाइम थोड़ी. नहीं तो फूक तो सकते हो. घर में गैस की जगह चूल्हा लगा लो. बट हु एवर कैन ब्लो, क्रिएट अ साउंड इन अ कोक बॉटल कैन ब्लो अ फ्लूट. Here. So that's a good tip. हाँ. खाली बॉटल दे. खाली बॉटल देना पड़ेगा. ठीक है, पानी आप किसका है पता नहीं, पीना पड़ेगा. कोविड नहीं हो सकता. बहुत देर से परेशान था, इन्होंने गाना गा लिया, इतना तबला बंद. मैं क्या मैंने करूं? कुछ तो मीडिया के लिए करना पड़ेगा. too good, too good. बट घर में जाके ट्राई करना, कहीं ना कहीं साउंड आएगा. Right, right. Beautiful, beautiful. Just one last question for now. कि एक instrumentalist from a small town जो already बजा रहा है, अच्छा बजा रहा है, comes to Bombay. What can be their first steps towards? It could be any one of the instruments. मैं just एक general सवाल पूछ रही हूँ. Smaller town के हैं और वो बम्बई आ जाते हैं, not India, sorry, बॉम्बे आते हैं. तो what could be their next steps for professional engagement of any kind? आई थिंक मेरे ख्याल से, मैं स्मॉल टाउन तो नहीं बट कैलकाटा से मैं खुद ही आया जी. 10-12 साल पहले. अच्छा. बॉम्बे आया. जी. सो आई वुड लाइक टू talk about my story a little जी. bit. Although I was playing in Bombay and thanks to actually Tawfiq Bhai was one of the first people with whom I started playing, and then I created an album called String Struck जहाँ पे इन्होंने काफी मुझे बोला, and Rakesh Bhai also, we had been playing together for many years and he's अच्छा. part of the same album. अच्छा. So for it's kind of by the way, he was the one who created a band. उस जमाने में जब मेरी शादी नहीं हुई थी, शास्त्रीय सिंडिकेट. शास्त्रीय सिंडिकेट, करेक्ट. शास्त्रीय syndicate. इंस्ट्रूमेंटल बैंड. हाँ. जब सिंडिकेट बैंक भी नहीं आया था. तो आपने बैंड का जिक्र किया, तो जी. we had created a band which was called Shastriya Syndicate, and That was your Rakesh first Bhai was step. we had created it and it was called the first instrumental band, and we had done performances including in Denmark. I was just telling Rakesh Bhai at Roskilde Festival, and Chris Martin from Coldplay was there. He was playing snooker in the Wow. backstage, Okay. and he Okay. came and said hi to me. मेरे को मालूम ही नहीं था. Oh. मैंने सोचा कोई होगा गोरा म्यूजिशियन इधर का. मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो हेलो. बाद में मालूम पड़ा कि क्रिस मार्टिन. Right. Anyway, so मैं 10 साल पहले जब आया, then for me it was a very kind of a challenge on many levels, and to first of all to get out of the box of classical music, जी. because हम लोग बचपन से हमको सिखाया गया है यही है, this is the tradition, and it is almost like a crime to get out of the tradition. Right. तो पहले तो I would say you have to shed that value judgment. Right. It's not only about Bombay. If you really want to play on a bigger field, you have to interact with other musical cultures. And जैसे राकेश भाई ने कहा, there's no better place for doing that than the music industry here, the film Right. industry. I'm very grateful that in the subsequent years, and of course,
you people, I think आप लोगों ने मुझे बुलाया इधर बजाने के लिए जी। just after I had moved. मुझे मेरे पास अभी तक उस फ्लायर है जी इधर का Yes, कॉन्सर्ट we का are- we had played here. So but वो क्लासिकल कॉन्सर्ट्स थे, so for जी। me that was comfort zone. Comfort मतलब मेरे को मालूम था क्या करना था. जी But when I started playing in the film industry, I didn't know, you know, जैसे क्लिक पे बजाना ये सब धीरे धीरे जो आदत. So now whenever I have people coming from outside Bombay, they come from different cities, I really feel for them because I feel that we have a role to play जी to kind of not only teach them music, because teaching music is one thing, right but it is हमारा फर्ज बनता है that we enable their careers. right We give them the right kind of career guidance कि भाई इधर जाओ, इनके साथ बजाओ, keep in touch with these people. These are the people who can, and lose the judgment. I think the first thing is to shed the judgment and be prepared to jump into any kind of musical situation, any scale. इधर से ट्रांसपोज करके बजाओ, उधर टेक्सचर बजाओ, जहां पे जितना करना है उतना ही करो. उधर जाके मत बोलो अरे ये तो मल्हार का है, इधर तो ये फ्रेज लगना चाहिए. नहीं है ऐसा. So, you know, you have to unlearn some things and you have to, of course, Unlearn. learn some things. Right. So this is my personal experience. right This is right, true, very true. But न्यू पीपल कमिंग इन, पहले तो मैं उनके पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे क्लासिकल सीखना है तो माँ बाप ही चुप करा देते हैं. अरे रहने दो, 16 घंटा 18 घंटा प्रैक्टिस. किसने बोला है 16 घंटा और किसने किया है 16 घंटा? बेचा उठ ही नहीं पाएगा वो तो. बैक प्रॉब्लम है, फ्रंट प्रॉब्लम है, दुनिया भर की प्रॉब्लम ही हो जाएंगे. और द मेन थिंग इज द फोकस प्रैक्टिस. अगर आप 1 घंटा भी आप क्या कर रहे हो, इसलिए नई स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि समझ में नहीं आ रहा हमने क्या किया. तो आप आजकल मॉडर्न फोन है, सबके पास स्मार्टफोन है, आप रिकॉर्ड करिए इसे, रात में खुद सुनिए, ये भूल जाइए कि आप अपने आप को सुन रहे हैं. लिसन लाइक अ क्रिटिक कि क्या सही नहीं है. तो माँ बाप को बोलना चाहिए अच्छा. और समबडी कमिंग न्यू, क्लासिकल थोड़ा सिखाना चाहिए. उसमें थोड़ा पेशेंस आता है. आप उनको लाइट सिखाना शुरू करेंगे, वो हर स्टूडियो में चक्कर मारते नहीं, कहीं चांस मिल जाए. रोज गा के पोस्ट करना शुरू हो जाएगा. क्लासिकल में ये मालूम है कि भाई अभी तो दिल्ली दूर है, अगर कल को मैं कब बजाऊंगा, अरे अभी तो सिर्फ 3 ही राग आता है, 2 ही ताल आता है, क्या करोगे, सीखो. तो एक मेंटली ही इज प्रिपेयर्ड कि थोड़ा पेशेंस चाहिए. उस चक्कर में फाउंडेशन भी अच्छा बन जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, ठहराव आ जाता है. तो दोनों बाद में अपने आप जो करना है करे, पर ये क्लासिकल का एक फाउंडेशन अच्छा हो गया. और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को जब वो जब एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्मॉलर टाउन से, जैसे ये कह रहे थे, आता है और बॉम्बे आते हैं, and then for them to make a pathway in Mumbai city. It's always good to go to somebody who's available. आदमी ये सोचता है मुझे स्टार के पास ही सीखना है, उसके पास टाइम नहीं है. और म्यूजिक सीखना जरूरी नहीं है. अभी मैं फ्लूट लेके सूर्य जी के पास आ सकता हूँ, मुझे आप ये राग सिखाइए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बजाता हूँ. सो आई वांट टू लर्न म्यूजिक. ये गलत है लोगों की मैं फ्लूट वाला हूँ तो फ्लूट वाले के पास ही जाऊँ. तो इट्स ओपन, थोड़ा दिमाग खोल के रखना चाहिए कि मुझे म्यूजिक सीखना है. अभी आई कैन प्ले फ्लूट, मुझे सारेगामा पता है अपने इंस्ट्रूमेंट में. आई कैन गो टू सितार पर्सन जिसका स्टाइल मुझे अच्छा लगता है. अब हमारे गुरुकुल में कोई गिटार वाला भी आता है, वालन वाले भी आते हैं, उनको बाबूजी का स्टाइल पसंद है या टेक्निक बजाने का अच्छा है, तो मुझे आप जैसा बजाना है अपने इंस्ट्रूमेंट में. दैट्स पॉसिबल. Very nice. नहीं सही है, इन्होंने तो सब कह दिया है. तो जो भी नया आएगा मुंबई में, तो पहले उसको दादर का कीर्ति कॉलेज में जाके वड़ा पाव खाना चाहिए. Superb. वो Superb. उससे ही मुंबई कर हो जाएगा. Perfect. पहले मुंबई कर बन जाओ, बाद में Perfect. मुंबई का सब कुछ आ जाएगा. Perfect, बिल्कुल. perfect. Thank you so much, Taufik ji. Thank you, Rakesh ji, for a fantastic. Thank you, Purban ji.